एक मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर ट्रैक है, एक पर्सन है राम, जिसे कहा जाता है कि तुम ए से बी तक ट्रेवल करो, और दोनों की क्या कहते हैं जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस दी हुई है 14 मीटर, और राम से कहा जाता है कि आप ए से बी तक ट्रैवल करिए और हमें बताइए कि आपकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रही। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करेंगे हम। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड रहेगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। upon total time. So in order to calculate average speed, first we have to find the total distance traveled by Ram from A to B, either this path or from this path. Total distance is A to B via this blue line. So we know that in a circular track, if we have given radius, then we easily calculate the circumference of the circle, and it is basically half of the circumference of the circle. So first we have to calculate the circumference of the circle, that is 2 pi, that is 2 pi r, 2 pi r, circumference of the circle. Circumference of circle. Here it is 2 pi r. What is r? R is 14. So this comes out to be 88 meter. The whole circular track is of 88 meter. So half of the circular track is of 88 by 2, which is 44 meter. What is 44? 44 meter is the length between, or say distance between, A to B, which is to be used in order to find the total distance. What is total distance? Total distance is 44 meter. How we calculate 44 meter? We have given radius, that is 14 meter. A to B is nothing, but it is half of the circumference of the circle, and we know that circumference of the circle is 2 pi r. 2 pi, what is r? Radius. So 288. So distance between A to B is 88 by 2, that is 44 meter. In order to calculate the time, how we calculate time? Time can be calculated by distance upon speed. What is distance here? It is 44. 44 meters is the distance. Speed given is 11 meter per second. 4 second is the time. So we put distance, that is 44 meter, and time 4 second. Average speed comes out to be 11 meter per second. What? 11 meter per second. Clear? How we calculate distance between A and B, how we calculate average speed. In order to calculate the average speed, we first have to find out the total distance and total time. So in this question time is not given, so we calculate it by using the formula time equal to distance upon speed, the very basic formula, distance equal to speed into time. So here distance is this circle, this semicircle. Okay, we have to find this semicircle, length of this semicircle, and how we calculate this? This semicircle is nothing but half of the circumference, and circumference is 2 pi r, so we can use the formula and calculate the average speed. Similarly, if we want to find the average velocity,
Then we write the formula first. First write the formula in any question and try to find out what the parameters or of which value we require to solve the question. Then do according to the approach. Average velocity is total displacement upon total time, isn't it? Total time. Okay. What is distance? Is the semicircle, length of the semicircle, but total displacement is what? Total displacement is this length from A to B. It is nothing but the diameter of the circle. If radius is 14 meter, then what is the diameter? Diameter is 2 times of radius, that is 28 meter. Okay, radius is 14 meter and diameter is 2 into 14. Diameter is double of radius, so here it is 2 into 14, 28 meter. Okay, and how we can calculate time? Similarly, if we find diameter is nothing but the length between, or the shortest length between A and B, shortest length. Now we have to find out the time, because we know the speed, we know distance, and we have to find the time. So time equal to distance upon speed. Okay, total displacement is 28. Okay, and total time is time equal to distance upon time. Okay, what is total time equal to distance, time equal to distance, total displacement upon total displacement 40, speed 11, time equal to distance is 28. Distance is time equal to distance upon speed, distance is 28 upon speed. Speed is 11 meter per second. So total displacement upon total time, 28 by 11. Here it comes out to be 11 meter per second. Okay, let us try to find out one more question similar to the previous one, which is based on average speed and average velocity. Here a car is running on a circular track whose radius is 10 meter and the time taken to complete the full lap by the car is 6.28 seconds. 6.28 seconds. So how we can calculate the average speed and average velocity on completion of each lap? On completion of, मतलब जब पूरी एक लैप कंप्लीट हो जाती है तब उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी. ठीक है, सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकालते हैं. एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम. टोटल टाइम क्वेश्चन में गिवन है दिस 6.28, तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस. तो टोटल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगी? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच लैप. सो इट मीन्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ईच लैप द व्हीकल कंप्लीट इट्स फुल circle, that is it completes its circumference. Okay, so distance is nothing but the circumference of the circle.
whose radius is 10 meter. So total distance is 2 pi radius 10, which comes out to be 6.28. 44, 6.28. Distance equal to 2 pi or 3.186.62.8, which comes out to be, distance is 62.8 meter. Now we have total distance and total time. So simply we can calculate the average speed. How we can calculate average speed? By using the formula. By using this formula, total distance upon total time. टोटल डिस्टेंस कितना 62.8 मीटर कितना चल लिया एक कंप्लीट ट्रैक घूमने में, पूरा अपना सर्कमफेरेंस कंप्लीट करने में 62.8 मीटर। उसमें टाइम कितना लगा, टोटल टाइम हो गया 6.28 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। Okay, now if we talk about average velocity, then what is average velocity? It is the total displacement upon total time. So in this case, what is the total displacement? Total displacement means if the car is starting from here and complete one revolution around the track, then it finally comes to here. In this case, the initial and final position of the car is same. So what is displacement here? It is 0, because initial and final position are coincide with each other, and if we subtract from each other, we get 0 as an answer. So in this case, average velocity comes out to be 0, because total displacement is 0. Total displacement is 0. Okay, why we take this initial point? Because in question the examiner is asking for the average speed and velocity on completion of each lap. Completion of each lap मतलब जब पूरी लैप कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे एंडिंग होना चाहिए, मतलब यहाँ पे आके पूरी लैप कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ पे आके जो टोटल डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो कितना हो जाएगा 0। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो चुका है तो एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी 0। टाइम कुछ भी हो, टाइम अगर दिया है 6.28 सेकेंड तो उससे कुछ मतलब नहीं है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो टोटल 0 आएगा, तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, जानते हैं क्या होती है रिलेटिव स्पीड। Basically relative speed is the speed between the two moving object. If one object is moving with x kilometer per hour and the other object is moving is y kilometer per hour, then the relative speed between them is x minus y or y minus x, depending on the speed which is greater. Okay, so relative speed is nothing but the difference in the speed of the two object or person or anything. Okay, we can say that the difference in the speed of any two object or say person or anything which is moving means the रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम क्या कहते हैं रेस्ट में मान सकते हैं और किसी दूसरे पर्सन को मोशन में। कहने का मतलब ये है कि रिलेटिव स्पीड जो है वो स्पीड का डिफरेंस होता है, मतलब हम दोनों की स्पीड को डिफरेंस ले लेंगे तो वो रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं अपनी अपनी वेलोसिटी से वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
बेसिकली अगर इसके फॉर्मूले में बात करें तो ये क्या होता है, स्पीड ऑफ 1 और से स्पीड ऑफ ए माइनस स्पीड ऑफ बी। बेसिकली फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आता है क्योंकि ये डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब नेगेटिव साइन। अब ये पहले कौन सा आएगा, ये डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि ए है, ए की स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बी जिसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी दिखा सकते हैं, स्पीड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए दिखा सकते हैं। मतलब दोनों को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और एक दूसरे को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट पे कर सकते हैं और मोशन पे कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, अगर रिलेटिव स्पीड निकालनी है हम लोगों को, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब वेलोसिटी ऑफ ए कितना है 15 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है 10, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड की रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब बी के रेस्पेक्ट में ए 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है उसी की डायरेक्शन में। दोनों का डिफरेंस लिया है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों में पॉजिटिव साइन लेना है। साइन कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मान लेते हैं कि अगर ए डायरेक्शन ये है और बी का डायरेक्शन ये है, अगर हम ए को पॉजिटिव लेते हैं तो बी को नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर हम ए को नेगेटिव लेते हैं तो बी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है दोनों से। अगर एक लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जा रहा है, ठीक है। जनरली हम क्या करते हैं कि जिस चीज़ में आंसर आने वाला रहता है उस चीज़ को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ताकि नेगेटिव में आंसर आने से मतलब थोड़ा अजीब ना लगे बिल्कुल, इसलिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं जिसकी ज़्यादा वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या हो गई, 15 माइनस 10 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ए भी 15 है और बी भी 15 है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के बीच का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब दोनों पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो 15 यहाँ पे क्या प्लस में आया, 15 प्लस में आया, मतलब अगर ए इस डायरेक्शन में जा रहा था 15 मीटर पर सेकेंड से, तो बी इसी डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो अगर हम बी को रेस्ट पे मान ले, अगर हम बी को रेस्ट पे मान ले, इफ यू टेक बी एट रेस्ट मीन्स स्पीड 0, मतलब वेलोसिटी 0, तो क्या होगा, ए बी के रेस्पेक्ट में 5 किलोमीटर पर सेकेंड से स्पीड से जा रहा होगा। मतलब अगर ए के है बी है, अगर दोनों ऐसे जा रहे हैं, ये ए है ये बी है, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी वेलोसिटी 5 है, या इसकी वेलोसिटी 15 है ए की और बी की वेलोसिटी 10 है, तो दोनों एक साथ जा रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी दूर के बाद इसमें दोनों के बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बी को रेस्ट पे मान लें और ए को मान लें, तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा होगा। अगर हम बी के ऊपर बैठ जाएं और उसको रेस्ट पे मान लें, अगर हम बी के ऊपर बैठ के देखें तो ए क्या दिखेगा कि 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम क्या कहते हैं, किसी ट्रेन में हैं, ठीक है, या कार में हैं, हम किसी कार में हैं, ठीक है। ऊपर से एक प्लेन जा रहा है, कार की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, प्लेन की स्पीड मान लेते हैं, रहते तो ज़्यादा ही है लेकिन मान लेते हैं 120 किलोमीटर पर आवर, एग्जाम्पल के लिए 120 किलोमीटर पर आवर। ये कार है, ये इस साइड जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से,
ये एक प्लेन है जो जा रहा है 120 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलेगा, और कार चलेगी 1 घंटे में 90 किलोमीटर। ठीक है, अब ये स्पीड ऑफ कार हो गई SC, स्पीड ऑफ प्लेन हो गया SP। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों के लिए हम लगा देंगे प्लस साइन, या दोनों के लिए नेगेटिव साइन। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्लस साइन का यूज़ करते हैं मोस्टली। ठीक है, अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये जो गाड़ी है ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर। और अगर SP, मतलब अगर हम बाहर खड़े होके, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये आप हैं, ये रोड है, ठीक है, सर्विस रोड पे जा रहे हैं, खड़े हैं बिल्कुल, बैठे हुए हैं चेयर पे, तो आपको क्या लगेगा, ये जो कार है ये जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये जो प्लेन है ये जा रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप उस गाड़ी में बैठ के देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि गाड़ी रेस्ट पर है और जो प्लेन है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। मतलब ये रिलेटिव, नाम से ही रिलेटिव है कि इसके रिलेटिव इसकी कितनी स्पीड रहेगी, मतलब रिलेटिव ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू B या रिलेटिव ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A, डिपेंड करता है कि हम किस एंगल से देख रहे हैं या किस जगह खड़े होकर देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलें कि अगर इसके नज़रिए से देखें तो हमारी कार की स्पीड रहेगी 90 किलोमीटर पर आवर, अगर प्लेन को देखें यहाँ से तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से प्लेन जा रहा है। लेकिन अगर कोई इंसान है जो गाड़ी के अंदर बैठा है तो वो क्या बोलेगा कि नहीं, ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, क्योंकि इसके रिलेटिव ये कितनी स्पीड से जा रहा है, 120 माइनस 90। 120 माइनस 90, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के साइन पॉजिटिव है और फॉर्मूले में नेगेटिव, मतलब SP माइनस SC। अगर हम बोलें स्पीड ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, विथ रेस्पेक्ट टू कार मतलब कार के रेस्पेक्ट में, अगर कार रुकी है तो उसके रेस्पेक्ट में स्पीड ऑफ प्लेन क्या होगी। हमारा मेन मोटो है स्पीड ऑफ प्लेन को कैलकुलेट करना, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब जिस रेस्पेक्ट पे खड़े होके हम देख रहे हैं, जिस एंगल से हम खड़े होके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ प्लेन हम कितनी लिख देंगे विथ रेस्पेक्ट टू कार, SP माइनस SC। ठीक है, SP माइनस SC, SP कितना हो गया 120 माइनस 90, ये कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर कोई हमसे पूछे कि स्पीड ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, मतलब कार के रेस्पेक्ट में प्लेन की स्पीड कितना है, तो हम क्या बोलेंगे 120 माइनस 90। 120 माइनस 90 इज द स्पीड ऑफ प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू कार, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ठीक है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये प्लेन है, ठीक है, और ये कार जा रही है इस डायरेक्शन में, प्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में 120 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, ये है क्या है, प्लेन है, ये क्या है, मारुति 800 कार है, ये किस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से। ये क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। प्लेन की स्पीड क्या है, प्लेन इनिशियली भी 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, लेकिन जा रहा था राइट साइड। ठीक है, कार 120 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, लेकिन राइट में। यहाँ पे क्या चेंज हुआ है कि कार जा रही है 90 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन वो जा रही है लेफ्ट साइड, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब दोनों के बीच का जो दूरी है वो बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों के बीच में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जाना मतलब हम प्लेन की स्पीड को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो कार की स्पीड को हमें नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, या तो हम
प्लेन की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें तो कार की स्पीड को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और जो फाइनल आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि फाइनल आंसर में नेगेटिव आया और हमने नेगेटिव लिया था क्या कहते हैं लेफ्ट डायरेक्शन को, तो क्या कहते हैं हम बोलेंगे कि स्पीड ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज दिस एंड दिस इन दिस डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव राइट साइड को लिया है और अगर पॉजिटिव आता है तो हम बोलेंगे कि क्या कहते हैं स्पीड ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इन राइट डायरेक्शन, एंड अगर नेगेटिव आता है और हम लोगों ने नेगेटिव लिया कार के लिए जैसे अभी लिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्पीड ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कार इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग लेफ्ट में जा रहे हैं। ठीक है।